Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and welcome to yet another episode of Greener, Happier Tomorrow. We at Parijay Genius are here to introduce you, as promised, every alternate Saturday with passionate plant lovers to share their stories with us and inspire towards a greener environment. Parijay Genius is committed to the cause of greener environment, restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us. Mankind has been depleting of it. We need to pass on the green legacy to our generations and believe in our motto, every corner needs a plant. So carrying this forward, let me introduce our guests for today evening. Priyanka Yadav. She is a lifestyle influencer, a blogger, and an ardent plant lover. And we would like to have Parul Agarwal, a CA by profession and a passionate plant lover. Lastly, I'm your host, Seema Sharif, a relationship and emotional intelligence coach, effective communications trainer, and content writer by passion. So let's begin with our lovely talk for today evening. Firstly, how did you both realize this passion for plants, and since when did that realization come to you both? We could have Parul, can you go first? Yeah, hi Seema, hi everyone. Hi, this is Parul. Actually, as we say, the seedlings are sown in childhood. The same goes with me. My mother, she used to give tidbits of household chores, and watering plants was one of them. So the thing started there, which actually culminated after marriage. So we started liking the scent of the flowers, the refreshing air after we watered the plants and all. So the liking started then. But I formally started after my elder daughter was born. So with her birth, I planted five. I bought actually five plants, and that's how my journey started. Right, Priyanka. Hi everyone. Hi Parul. Hi Seemaji. Hello. So my journey also started since childhood. I used to live with my grandpa. So वो मेरे को थे कि plants में पानी देने का काम ऐसे वो मेरी duty लगा देते थे. So that's how my love for plants started actually. I used to Christmas around the Christmas tree alone and all. So और जब भी मेरे उसके बाद मेरे father जो हैं उन्होंने हमारे घर के साइड में छोटा सा गार्डन होता था. सो वहाँ पे हम दोनों मतलब मी एंड माय फादर सो हम दोनों उसको डेकोरेट करते थे. एंड जब हमारे घर का रेनोवेशन हुआ तो जो लाइक रिमेनिंग मार्बल है ना उससे मैंने एक पाथ ऐसे बनाया थोड़ा मार्बल से डेकोरेट करके व्हेन आई वाज इन 9th क्लास. सो दैट हाउ माय जर्नी स्टार्टेड फॉर प्लांट्स एक्चुअली फॉर लव फॉर प्लांट्स. So when did this love for plants become a passion with you people that, you've grown your garden so well, you've kept various types of plants and different type of plants and you're nurturing them so well. So कब ये passion में बदला आपका जो पेड़ पौधों की तरफ जो आपका प्यार था ये passion में कब बदला आपका? शिवा जी जैसे मैंने बताया कि शादी के बाद मेरा जब बेबी हुई तो मैंने सोचा कि अब मेरे घर में एक बच्चा आया है मैं और छोटे ग्रीन बच्चे भी मैं लगाऊं. बट हम लोग वो हम ट्रांसफरेबल जॉब में रहते थे तो अलग अलग जगह जाती थी तो मेरे पौधे मुझसे अलग हो जाते थे. इवेंचुअली व्हाट हैपेंड आई शिफ्टेड टू काठगोदाम और वहां मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो था. इसके फ्रंट यार्ड में भी बहुत बड़ा लॉन था और बैक साइड में किचन गार्डन. तो फ्रॉम देयर दैट वाज माय एक्चुअली स्टार्टिंग. वहां पे मैंने मतलब आई वेंट फुल ऑन फॉर किचन गार्डनिंग. आई हैड बिग ट्रीज मतलब क्रिसमस ट्रीज एज प्रियंका मेंशन. तो वहां पे खूब बड़े बड़े हमारे ट्रीज हुआ करते थे जिन पे हम डेकोरेट करते थे. माय डॉटर वाज ग्रोइंग अप एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी छोटी बेटी भी वहीं पर पैदा हुई. तो वहां मेरे प्लांट्स बहुत बढ़ गए. एंड फिर उसके बाद मैं आगरा चली गई. वहां फ्लैट में कम जगह थी तो वो मेरे प्लांट्स थोड़े मुझसे जुदा हो गए. फिर मैं यहाँ चंडीगढ़ आई. चंडीगढ़ आके सबसे पहले तो मेरे को अच्छा सा घर मिला. फिर यहाँ पे जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी वो थी चंडीगढ़ ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट. वहां से मुझे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मिले, बहुत इंस्पिरेशन मिली
एंड उसके बाद तो कोई लुकिंग बैक है ही नहीं। एकता जी से मुलाकात हुई, एकता जी ने तो इतने नए नए कॉन्सेप्ट्स बताए, जैसे त्रिवेणी है, और ये घर के सब्जियां वगैरह के हमारे बीज हैं, सैपलिंग्स हैं, इन्होंने ही मुझे प्रोवाइड करा के दिए। तो मेरी जर्नी ऐसे बढ़ती चली गई और अब ये फुल ऑन पैशन बन गया। एक चीज और जो नोटवर्दी है वो ये कि कुछ टाइम पहले यहाँ चंडीगढ़ में जो स्वीपर्स की स्ट्राइक हुई थी, तो तब मैंने कंपोस्टिंग शुरू करी फोर्सिबली। और वो जो मेरे पास इतनी ऑर्गेनिक मेन्योर इकट्ठी हो जाती थी, और मैं उसे यूज कैसे करूँ, तो आई स्टार्टेड प्लांटिंग मोर एंड मोर सो दैट आई शुड यूज इट। मैं उसको वेस्ट करनी, वो ब्लैक गोल्ड जो था मुझे वेस्ट करते हुए बहुत पिंच हो रहा था, तो आई स्टार्टेड मोर एंड मोर प्लांटिंग। दैट्स इट, वो मेरा पैशन बन गया। अब ये मेरी किचन गार्डन की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। That's awesome, Parul, the way you, and I like the use of the word of black gold, you know. ये सबसे बढ़िया चीज जो आपने है इन लोगों के लिए, जो भी आपने ये पेड़ पौधों के लिए जो आपने इतनी अच्छी खुराक जो आपने खुद बनाई है, सो आई लव दैट एक्चुअली। सो वो एक सोर्स था जो कि हम वो फोर्सिबली कन्वर्ट हो गया, वो मतलब अब पैशन में बदल गया। जी जी जी, I got the point. Blessing in disguise actually. Superb, superb. So what about you, Priyanka? Like when did you notice that ये आपका passion बन गया है? मेरा एक आई चंडीगढ़, तो ऑफिस से आने के बाद मतलब रिलैक्स फील करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। So but when we used to go to nursery, I used to see nurseries and plants. I used to feel so relaxation, मतलब पीस ऑफ माइंड फील होता है प्लांट्स को देख के, है ना। सो हम रेंट पे रहते थे तब, तो मैंने सोचा था कि जब हम अपना फ्लैट लेंगे तो मैं उसको डेकोरेट करूंगी, बालकनी को अपने हिसाब से। आई यूज्ड टू कलेक्ट पिक्चर्स कि मैं ऐसे डेकोरेट करूंगी, ऐसे डेकोरेट करूंगी। पर्सनल उसको एक बैठने के लिए जैसे एरिया बनाते हैं प्रॉपर, कि जहाँ पे आपको अपना हैप्पी स्पेस, यू कैन से माय हैप्पी प्लेस। तो वो मेरे माइंड में था। और जब हम शिफ्ट हुए हमारे फ्लैट में, सो इन 2000 तब से मैंने फिर प्लांट्स एक के बाद एक लेने शुरू किए, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग बैक ऑफ कोर्स। वंस यू आर अ प्लांट लवर, नेवर यू आर अ प्लांट लवर। एंड उसके बाद क्या, जैसे एक ही प्लांट से और आप प्रोपेगेट करके कैसे कितने और प्लांट्स बना सकते हैं। इट एड्स सो मच ग्रीनरी टू वन कॉर्नर, इट मेक्स इट सो ब्यूटीफुल, एंड आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, एंड प्लस सो मच ऑक्सीजन। अभी तो पैंडेमिक में हमें उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फील हुआ है, ऑक्सीजन का। जी, मतलब प्लांट्स का अभी मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कि कैसे मैं इस कॉर्नर को डेकोरेट कर सकती हूँ, कैसे इस कॉर्नर को डेकोरेट कर सकती हूँ। सो मैंने अपनी बैल्कनी में एक येलो वॉल पेंट की है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को उसके लिए सपोर्ट किया पूरा बिल्कुल, एंड वी बोथ डिड एक्चुअली, हमने कोई लेबर से नहीं करवाया कुछ भी। सो ही पेंटेड इट येलो, एंड मैंने उस पे एक शॉपिंग बैग से कट करके उसको पेंट करके एक विंडो बनाई, एंड उसके बाद उस पे I have painted some leaves and branches, so you can see that in picture, and एक corner with Buddha और एक fountain. So ये मेरा happy place है. Whenever I feel I'm already in love with your balcony now, you know. तो उसके बाद मैंने अपना happy place create किया है. Beautiful. I also love that. You know, you can see I have sent you one video where she is watering the plants. So she actually hugged the plants. She never, मतलब उनको कभी भी तोड़ती नहीं है वो plants को, जैसे normally कई बच्चे करते हैं। तो वो she loved them, she hugged them. Oh nice. तो मुझे लगता है जी वो हमसे ये सब चीजें लेते हैं, जैसे कि हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ऑन पेरेंट्स से ये चीजें सब ली है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, हम जो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। लव प्लांट्स। मेरा सवाल वही होने वाला था कि हम लोग अपने माँ बाप से या अपने दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे बड़े हैं उनसे ये सब कुछ हम सीखते हैं, लेकिन आज पर्यावरण की दशा जो देखते हैं ना, इससे देखकर बहुत ही दुख होता है। सो एज पारुल ऑल्सो सेड कि कोविड सिचुएशन में हम लोग ऑक्सीजन के लिए बाहर इतनी दौड़ धूप करते हैं, जब जरूरत होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स,
खरीद के ले आते हैं, जबकि वी कैन एक्चुअली एंजॉय प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। एंड इंसान लगा हुआ है कि किस तरीके से अपनी कंक्रीट जंगल बनाए, बजाय इसके कि वी हैव मोर ग्रीनर जंगल्स। सो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? फ्रेंचाइजी है। नरेंद्र जी, if you could just mute yourself, please. मैं सुन रहा हूँ, जरा अनम्यूट कर लूं? जी आप म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूटेड हैं। मैं कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ, अभी कर जी, थैंक यू। यस पारुल, यू कैन कंटिन्यू। जी, आपका कोई प्रश्न था? जी मैं यही पूछ रही थी पारुल से कि जो हम लोग यहाँ प्रकृति में जो प्लांट्स या पौधे पेड़ वगैरह हम लोग जो काट रहे हैं, जो इसको हम लोग पर्यावरण को बजाय और अच्छा स्वस्थ बनाने के बजाय हम लोग इसको नष्ट कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स बना रहे हैं। तो इसके बारे में मैं पूछ रही थी कि उनका विचार क्या है। यस पारुल, प्लीज गो अहेड, बोलिए पारुल। सीमा जी देखिए, कंक्रीट जंगल बनाने की बात है तो मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट है। मैं कंक्रीट जंगल इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं उसे डेवलपमेंट मानती हूँ। देखिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मॉडर्नाइजेशन है, हम कन्वीनियंस भी देखते हैं। आज अगर एक फ्लाईओवर बनाना हमारे लिए जरूरी है, अगर हम उसको कंक्रीट बनाते हैं कि हम फ्लाईओवर बना रहे हैं पेड़ काट के, तो आप उसका दूसरा इफेक्ट ये देखिए ना, वहां पे ट्रैफिक जाम लग के जो धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, और हॉकिंग से जो नॉइज पोल्यूशन होता है, वो भी तो पर्यावरण के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो अगर हम कुछ भी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके उसे कमेंसरेट करने के लिए हम इक्वली पौधे भी लगाएं। अगर फ्लाईओवर बना रहे हैं, जितने पेड़ काट रहे हैं उसके दुग्गे लगा दें, तो बैलेंस कहीं ना कहीं हम स्ट्राइक कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक वी कैन डू। एंड अगर सब लोग इस तरह से सोच रखेंगे, थोड़े थोड़े ही प्लांट्स अपने घर में लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी केयर करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड जैसे एकता जी ने ये त्रिवेणी प्रोजेक्ट शुरू किया, आई एम सो मच इन लव विद दिस प्रोजेक्ट। मैंने अपनी मम्मी को 2 सेट भिजवाए, जबकि क्योंकि मैं चंडीगढ़ में, आई डोंट बिलोंग टू चंडीगढ़, और यहाँ मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं लगा सकूं। तो मैंने मेरी मदर को पूछा, तो उन्होंने हमारे टेम्पल में और गोडाउन में वो प्लांट करे हैं, सो दैट कि चलो एटलीस्ट दैट इज डन। तो ये ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स होंगे। ग्रीन पेट प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ में, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो इस पार्ट का भी केयर करते हैं। एंड आई थिंक दैट कैन बी बैलेंस्ड। तो वो कंक्रीट जंगल ना बने और वो बैलेंस हो जाए, मुझे लगता है हम सब ये सब कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। That was a very valid point you made, because even I was also thinking out loud with the same, कि जैसे when we have development या हम लोग ये concrete jungle जैसे मैंने बताया, so in order to replace the plants that we have destroyed, or we have replaced them with concrete structures, we can always have them planted elsewhere. So that point is a good takeaway from you. So your views on this, Priyanka, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मेरा ही सेम थॉट प्रोसेस है एज पारुल। आई कंप्लीटली एग्री विद हर। मुझे लगता है कि मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ प्लांटिंग भी बहुत जरूरी है। उस छोटे से छोटे कैसे ग्रीन ऐड कर सकते हैं, वी कैन मेक इट लाइव एंड व्हिच कैन हेल्प एटमॉस्फेयर आल्सो। सो मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन तो होगा ही, बट साथ साथ हम कैसे ग्रीनरी को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस व्हिच कैन व्हिच डोंट हार्म आवर एनवायरनमेंट एंड इवन इम्प्रूव इट इन एनी वे। सो मुझे लगता है कि ऐसा थॉट प्रोसेस रखना और उसको एक्चुअल में करना इज अ बिग थिंग, चाहे छोटे से छोटा स्टेप लेना ही क्यों ना हो। जी, तो आपके हिसाब से what are the steps that you have taken in order to beat ये जो कुछ भी हो रहा है environment में, आपका खुद का योगदान, आप क्या सबसे बेस्ट योगदान आपका मानते हैं? Anyone if you can go into that. Okay, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे घर में अगर एक छोटा सा भी कॉर्नर है, आपको हर कॉर्नर में एक प्लांट मिलेगा, एंड मोस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आई हैव केप्ट इन माय होम। पड़ता आपको
excuses आपको ढूंढना पड़ेगा, you have never ending excuses, but way, so you can, when you want to find a way, you can always have a way. और green add करने के लिए आपको कुछ ऐसे special corner नहीं है, hanging planters भी आते हैं, vertical planters you can add, balcony का grill है तो उस पे आप hanging planters आप लगा सकते हैं, you know, किसी भी corner में standing एक planter लगा सकते हैं. तुलसी most religious हमारे के सब घर में होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. और इसके अलावा मनी प्लांट एंड ऑल, स्नेक प्लांट, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड दे डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस, जस्ट वाटर. Just wonderful, just wonderful. Yes, Parul. The small steps, like I try to inculcate in my daily life. मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं मुझे बाजार से कुछ ना खरीदना पड़े. Propagation is one thing. मैं सब जगह से कटिंग्स इकट्ठा करती रहती हूँ. I'll show you one thing. अभी हम लोग डलहौजी गए थे, वहाँ मुझे हाइड्रेंजियाज बहुत अच्छे लग गए, and I took these flowers. So I'm trying to propagate. मैंने कुछ sticks अपने यहाँ लगा भी दिए हैं. Let's see अगर वो यहाँ पे bloom हो जाए. Similarly, money plant is one thing which can be easily done. So propagation is one thing, and then comes the fertilizers. Like I told you कि मैं already उसमें वो लगा चुकी हूँ. Composter I use totally organic material जो मेरा घर में ही बनता है. Plus कुछ और अगर pesticides वगैरह भी मुझे, तो I use राख and all. Nothing chemicals, no chemicals. तो that ways मुझे लगता है मैं sustainable life की तरफ move करने की कोशिश करती हूँ. Plastic हम avoid करते हैं. देखिए we cannot totally eradicate. That is being practical. But हाँ minimal use, और अगर है तो reuse. मतलब हम नर्सरी जाते हैं तो प्लास्टिक पॉट्स मिल जाते हैं. I don't replace them at once. I use them till the time they are cracked on their own. तो इस तरह से फिर दाल एंड राइस वाटर जो मैं अपने प्लांट्स के लिए स्टोर करती हूँ, which I feed them. नॉर्मल वाटर की जगह जैसे प्रियंका भी RO वाटर यूज करती है, मैं भी RO और दाल राइस वाटर. दैट्स अ नेचुरल फर्टिलाइजर. हमें कुछ करना ही नहीं है, हम फेंक देते हैं उसको विदाउट रियलाइजिंग. उनकी पॉसिबल जो पोटेंसी है वो हम भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंस उनकी वैल्यूज, और वो हम फेंक देते हैं. बट एक्चुअली दे आर लिक्विड गोल्ड, आई मस्ट से. तो दीज आर फ्यू थिंग्स. एंड मैंने अपने घर में कोशिश करके हर तरह के, जैसे प्रियंका ने भी कहा कि तुलसी बहुत जरूरी है. आई प्लांटेड शमी ऑल्सो, and then few religious auspicious plants. And मुझे इस चीज में एकता जी ने बहुत हेल्प करी. मेरी बेटी का 15 बर्थडे था, she advised कि आप सीता अशोक का प्लांट लगाइए, and वो मेरा काफी अच्छा बन भी रहा है. होपफुली जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो प्लांट भी बहुत अच्छा हो जाएगा. So these are few things which we can do. Right. So you said that आप खुद composting करती हैं आपके plants के लिए. Everything is organic. And you create your own black gold. Would you like to elaborate on that? And हमारी audience को आप कोई tips देना चाहेंगे कि how they can use the house waste products into creating their own compost? Yeah, definitely. It is actually, that feeling you are doing a sustainable thing is great. पहले तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये गंदगी, it's not waste. It's the kitchen leftover. We can say kitchen leftover or peels or whatever. क्योंकि हम जो खा रहे हैं हम वो ही उसमें डाल रहे हैं, हम कुछ गंदा नहीं डाल रहे हैं उसमें. वो थोड़ा मुश्किल तो है, पर उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं then we go by it. और वो इतना हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. I have taken, as I told earlier कि जब चंडीगढ़ में स्ट्राइक हुई थी तब मैंने वो कंपल्सरीली वो कंपोस्टर लिया था. और it's been I think 3 years since I am doing this. Every month मेरा एक हार्वेस्ट निकल आता है कंपोस्ट का. and थोड़ा मेरे लिए obviously it's some work, but I have engaged my maid for that. और वो मेरी हेल्प करती है. She does it. I pay her. Definitely उसको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे लिए तो वो मैं यूज कर रही हूँ अपने घर में, बट उसको कोई कंपल्शन नहीं है. She is doing it with the feeling that I'm doing something good. So I pay her for that.
तो उसमें हमें सिर्फ अपने किचन वेस्ट को डालकर और उसमें हमें कुछ रीमिक्स पाउडर डालना होता है, सो दैट कि वो जो वेट होता है वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाए। वो धीरे धीरे डीके होता है, फिर उसके बाद वो रखा रहता है, और फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज माई कंपोस्टर। इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, देखिए लिजर्ड्स आर देयर, और कभी कभी स्मेल भी आती है, कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो वो हमें चैलेंजेस जरूर फेस करने पड़ते हैं। हमें इसको सीव करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ताकि वो वेट ना रहे, ड्राई रहे, क्योंकि अगर वेट हो जाएगा तो कीड़े आ जाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट देन अगर वो हमारे सिस्टम में आ जाए, इफ वी एक्सेप्ट इट, तो नथिंग लाइक इट, then there is no looking back. I cannot imagine my life without this composter. Awesome. That's really nice. तो आप दोनों के गार्डन्स में लाइक किस तरह के पेड़, या आई मीन नॉट पेड़ ऑफ कोर्स, पौधे हैं? लाइक डू यू हैव इवन मेडिसिनल प्लांट्स, and how best do you use both of them? Like aloe vera gel is the first thing. Aloe vera plant is the first thing which we all have, and I think we cannot survive without that. So as far if we go by medicinal, it's aloe vera. Then I have herbal also. I've planted basil, I planted lettuce also. I have curry leaves and all. Then as I told, some auspicious and religious importance plants are also there. Pachira is there, which is the actual money tree. So these actually give you good vibes. And some ornamentals are there, some permanent plants, some ficus and all are there. My latest obsession I show you is the oxalis. Which one? This is my latest obsession. This is actually a very beautiful plant. It's sown in a bulb. Can you see it? Yes. It opens. It's a purple flower. It's a purple foliage, and it's open with sunlight, and it's folds after sunset. So these kind of plants are there with me, and all the indoor plants, succulents are there. Though many of them are dying, I mean, because we are amateurs only, so we are just trying and trying. Then Xanadu is there, and Caladiums and etc. These are very beautiful. ZZ is my favorite. Okay. So don't you think plants are such a blessing to have them around us? You don't sometimes I think you just feel complete जब आप आपके जितने भी चहीते, as you said, these are your favorites, so I think you just start feeling complete and you can spend hours together with them. Definitely. What's your take on that, Priyanka? Like, could you share your thoughts on these? Right, sure. You know, जब भी मेरी balcony में कोई भी flower bloom होता है, मैं अपने husband को बोलती हूँ कि like I can sit here for hours looking at that flower. It gives me so much peace. तो मतलब एक single flower bud भी अगर bloom हो रहा है, it gives me so much happiness. So you can imagine इतने सारे plants जो लगाए हैं, and when we propagate them, तो उससे जब वो बड़ा होता है, it's like a child for us. Right. And इसके अलावा ZZ plant, as Paru mentioned, that's my favorite too. And I need to get that butterfly one, the purple one you have just shown to us. Right. Other than that, मेरे पास palm trees का collection है, because palm trees, I love them. They add so much beauty to any corner, like just behind you. Right. That's a wonderful thing. So actually, thank you so much for sharing such wonderful thoughts, but it's more welcome कि आपकी journey आगे कैसे जाने वाली है. If you have any vision for that, we would love to know. I have already started my daughters to water. I've made them do this so that they have to water the plants. So the way our mother compulsorily made it do, and then obviously small likings turn into passion. Same way, when they will mature, they will also get this. So I cannot expect them to passionate the more. The level of compassion with what is in me, they should also have. But definitely one day they will have.
if it is from now. So my children are actually into this, and my husband is also very supportive. Though he doesn't ever visit the nursery, he sits in the car, but he patiently sits in the car using his phone. So I'm blessed that way that he never ever says no to take me to a nursery. So I think the family comes together that ways. I mean, whenever, like I told you, I have a kitchen garden also. So whenever any harvest is there, today only we had a brinjal from there. This is the size of kakadi which we harvested today. Awesome. So Yes. the family actually feels great when I do. My small sister things go a long way into the family. So they feel good about it. So that is my job done. Right. So that's your legacy that you're passing on to your children, so that आगे के generations तक ये जारी रहे, right? Definitely. You, Priyanka, like, what is it that you would want to give to your future generations? My daughter actually, she always accompany me to the nursery. मेरे husband को ये पता है she is not feeling well, or she is not she's stressed or anything. Just take her to nursery and she'll be happy. Wow. So that's how things work in our home. And मेरी daughter वो मुझे देखती है पूरा दिन, मतलब plants का कभी भी कुछ भी जरा सा इधर से उधर करते हुए, या मतलब she observe me. So I think वो से ही वो भी सीखेगी, and I'm sure उसको भी करने वाला है plants के साथ जैसे मेरा है. जी. On that note, Seema ji, I would like to add one thing. जैसे उस प्रियंका ने बोला कि वो observe करते हैं, मेरे बच्चे जैसे मुझे observe करते हैं कि मैं जब भी stressed होती हूँ या normal routine में भी मैं अपने plants को I take care. तो मेरे बर्थडे पे उन लोगों ने, मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक अच्छा सा सेटअप बनाया with the plants, with everything what I love, और उसमें सिर्फ plants ही plants थे. I have shared the pictures with the PPT also. तो वो इतना सुंदर सा सेटअप उसके लिए बच्चों ने इसलिए बनाया कि मम्मी खुश होंगी. And I was actually overwhelmed कि they thought, so they are actually taking the legacy forward. Right. So it's so overwhelming जब हमारे बच्चे भी वही चीजें करें, वही चीजें अडेप्ट करें जो हमें अच्छी लगती हैं और आगे बढ़ाते हैं. It's really overwhelming, and इससे ज्यादा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है. And अगर ये चीज हमारी पर्यावरण के लिए हो तो I think सबसे बढ़िया हो सकती है. So I would request if anyone in the audience would like to ask questions to our guests regarding plants or composting, you can unmute yourself and ask, or आप chat box में भी पूछ सकते हो. Do we have any questions from the audience? Seema, I just want to ask. Yes, Chandrasekhar. Yeah, Chandrasekhar from Pune. So my questions to both of them is, first of all, compliments to them for doing a wonderful job and getting us more oxygen by planting more plants. So question is कि how are you upgrading yourself? कि नई चीजें जो आ रही हैं, जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे follow करते हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें? Are you working on it? So that's my question. Sorry, I couldn't hear you. I mean, I couldn't get the question. Okay, I just want to ask you कि technological changes या कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं. तो जब हम plants की बात करते हैं, आपके पास already कई सारे variety and quantity of plants हैं. But दिल हमेशा मांगता है ज़्यादा, दिल मांगे more. तो हमेशा एक चाह रहता है कि और क्या मैं बेहतर करूं और क्या मैं अच्छा करूं. तो how do you keep yourself updated in terms of learning new things? For that, I follow few people, a few plant lovers on Instagram. So they keep updating their tips and everything, tricks, how to propagate, how to take care of the plants, what is new, which season is good for which plant. So these ways I try to, I have dedicated half an hour of my day to this learning only.
So whatever new plant, just say I never knew about oxalis. Few months back, I got to know about oxalis bulbs, and then I sourced it from Pune. I searched in the local nursery. That way, I mean, Instagram is helping me that way. And are you sharing your photos जो आपके गार्डन का जो भी आपके प्लांट्स आप जो कर रहे हैं, are you sharing it in the Insta or FB? Do you share Nothing that? as such. No. I have a private account actually. We are not into that commercial kind of thing. I mean, I am a private person. But अक्सर क्या होता है कि जब हम अपने परिवार, हमारे बच्चों के बारे में कुछ अपनी पर्सनल चीजें रहती हैं, ये जाहिर सी बात है कि हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। पर जब हम पर्यावरण की हम बात करते हैं और हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो ना ही हमारे परिवार के लिए बट समाज के लिए कुछ एक सही उदाहरण हम जब साबित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी जो अच्छे काम, अच्छी बातें हैं, वो जब अच्छे लोगों तक पहुंचता है तो वो एक प्रेरणा बनकर साबित होता है और बहुत से लोग उस चीज में मैं समझता हूँ अगर एक भी इंसान आपके इस काम से प्रेरित होके वो अपने घर में गार्डनिंग शुरू करता है, आई थिंक यू विल फील ब्लेस्ड। I'll take this suggestion forward, and I'll definitely create a green thumb page for myself, because what is Parul is a private person. But definitely this plant journey would be taken forward, and I'll actually welcome your suggestion. मैं बिल्कुल इस चीज को आगे लेके जाऊंगी, बट अभी तो मैं भी सीख रही हूँ, मैं ही सीख रही हूँ, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी? It is just the experience only which I am sharing. मैं इस बात पे फिर आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि जैसे आज जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं खुद अभी इतनी नहीं सीखी हूं तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। मैंने कई लोगों के मकान देखे हैं जहां मकान 5000 स्क्वायर फीट या 8000 स्क्वायर फीट के मकान है और उसमें एक गमला तक नहीं है, एक गमला भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो ग्रीनरी पसंद नहीं करते, बट कई बार उनको सही लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। But anyway, I'm taking. Take this forward. Thank you so much. Take this forward. Thank you. Thanks a lot. Seema, over to you. Thank you, Chandrasekhar. Priyanka, do you have any views to share on Chandrasekhar's question? Yes, please. How do you update yourself? So मैं being an Instagram influencer, मेरी सारी चीजें पब्लिक हैं, like stories, post. So मेरा एक स्पेशल हाईलाइट सेक्शन है पेज पे, आप जाके देख सकते हैं, माय बालकनी गार्डन के नाम से। So उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे मैंने अपनी बालकनी गार्डन को रेनोवेट किया एंड कैसे उसको DIY करके सब चीजें मैंने रेडी की, एक एक प्रोसेस मेरा, एक एक स्टोरी, यू कैन फील इट राइट। और वो स्टोरीज देख के, वो उनसे इंस्पायर होके इवन मेरी सोसाइटी में 4-5 पर्सन्स जिन्होंने घर में बालकनी गार्डन्स बनाए हैं, दे हैव स्टार्टेड लविंग प्लांट्स एंड उन्होंने अपने घर में प्लांट्स इतने सारे रखने शुरू किए हैं। इवन आई थैंक देम, स्पेशल मैसेज करके मैंने उनको थैंक किया कि नाउ आई हैव अ बेटर व्यू बिकॉज सामने ही उनका बालकनी है। सो दैट थिंग एक्चुअली जब आपके प्लांट क्लब से इंस्पायर होके कोई अगर स्टार्ट करता है ये सब चीजें, तो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो ग्रेटफुल। किसी को एनवायरनमेंट के लिए लव उनके दिल में स्टार्ट हुआ। जी, you are an ardent blogger and as far as I know, you know, आपका एक Instagram page जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, that is हमारी आकांक्षा। जी। So what all do you share with the public on that? I'm basically lifestyle influencer, lifestyle parenting related and fitness का भी मैं उसमें share करती हूँ, fitness, beauty. So मैं एक्चुअली इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स रन करती हूँ, जो कि एयर होस्टेस अकेडमी है, एंड वी ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर एयर होस्टेस एंड पायलट ट्रेनिंग। सो इसके लिए मैंने वो पेज स्टार्ट किया था, बट देन आई केम इनटू दिस इन्फ्लुएंसर जर्नी आल्सो व्हेन माय डॉटर वाज। सो मैंने उसको फिर पेज को नाम दिया हमारी आकांक्षा आवर डिजायर, बिकॉज हर नेम आकांक्षा, सो इट वाज अ थॉटफुल नेम एक्चुअली, हमारी आकांक्षा आवर डिजायर। Then I cut it short to Hamari Akansha only.
एंड उस पे लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, ब्यूटी, फिटनेस सब से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ. यू कैन सी ऑन दैट पेज. इवन मेरा वेबसाइट है igmedia.in, तो उस पे भी आप जाके देख सकते हैं. कोर्सेज रन करते हैं एंड ऑल. सो उस पेज पे मेरा प्लांट क्लब के लिए जो है वो भी सारा इंस्पिरेशन के तौर पे मैंने वो हाईलाइट सेक्शन में ऐड किया हुआ है, सो दैट पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मी. इफ आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम सच स्मॉल स्पेस, दे कैन डू इट. एवरीवन कैन डू it. and it That's gives wonderful. much peace. So for those of you who want to follow Priyanka, you can follow her on her Instagram handle, which is Hamari Akanksha, and get her wonderful insights on that. Thank you so much, both of you, Parul as well as Priyanka. आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें share की about your planned journey and what all you have learned, and of course about your black gold and composting, Parul. That was wonderful. And जैसे आप लोगों ने बताया कि आप हर कोने को सजाते हो एक प्लांट के साथ. So this is our motto from Parijay Genus, which believes that every corner needs a plant. So अगर आपके कमरे को आप सिर्फ सजाना ही नहीं है, उसमें जान डालनी है, तो I think every corner needs a plant. And यही हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप हर ओकेजन पे या जब कोई भी समारंभ है कुछ भी, तो प्लांट से ज्यादा आपको बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं हो सकता. On that note, I will tell you, I would like to mention, ये मुझे कल ही गिफ्ट मिला है. परसों it was a chartered accountants day and I won a competition और वहाँ पे मुझे chartered accountants की तरफ से ये मिला है. तो I am really happy. मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी यही है. जी बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने, बहुत सही फरमाया. So now I would like to introduce you to the main influence or the main power behind Parijay Genus. I'd like to introduce you to Ekta. Ekta, could we have you please? And we have a mission which is a Triveni mission, and Ekta would like to introduce you to the Triveni mission that we run. And just before Ekta can go ahead, I would like to invite passionate plant lovers. आप हमारे साथ जुड़िए. You can share your stories, your passion, your journey or with plants with us. We run this show every first and third Saturday of every month. So you can get in touch with us for this. And over to you, Ekta. Thank you, Seema. इससे पहले मैं मिस्टर नरेंद्र कुमार बस्सी जी को बुलाना चाहूंगी. I think sir आप कुछ कहना चाह रहे थे. So please unmute yourself and say a few words. Hello. Basi ji, you're muted now. आप म्यूट पे हैं, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए. आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर आप आज के सेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आई मेरी आपके पास अभी कि नहीं? जी, हम सुन पा रहे हैं. नमस्कार, थैंक यू. दोनों स्पीकर्स ने बहुत अच्छा कहा. एक सीखने की बात कर रही थी मैम, तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखना बंद, जीतना बंद. तो सीखते रहिए. चंद्रशेखर जी ने बड़े अच्छे प्रश्न किए, तो काफी हमें उसमें से मटेरियल मिला. तो भाई एकता बेटी को तो मैं यही कहूंगा कि सबकी स्टोरीज लिखते जाइए एक फाइल में. जो स्पीचेस है ना, इनको कृपया राइट डाउन करिए, लिखते जाइए. एक वॉल्यूम बनेगा हमारे पास बहुत अच्छा इनके तजर्बे का. और जो कंपोस्ट वाला आज पार्ट आया है, इसको जरूर शेयर करें सबसे. सर इसके लिए हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे कि हाँ कैसे हम लोग घर पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं. इनका कंपोस्टिंग का जो सिस्टम मैंने देखा तो जगन्नाथपुरी मुझे याद आ गया. अभी वहाँ खाना कैसे बनता है, ये कंपोस्टिंग का कुछ ऐसा सिस्टम था. तो ये दोनों स्पीकर बधाई के पात्र हैं. तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आशीर्वाद. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच बस्सी जी. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी ऑडियंस का. सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस जिनकी वजह से ये शो जो है वो सक्सेसफुल है. एंड थैंक यू सो मच प्रियंका जी, पारुल जी फॉर कमिंग टू आवर शो. एंड पारुल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, यू आर अ प्राइवेट पर्सन
बट आई मस्ट से एज अ प्राइवेट पर्सन यू आर इंस्पायरिंग. आप हमारे यहाँ पर शो में आए, ठीक है. आप आई थिंक मुझे लगा इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कितने लोगों को आज आप यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं. So it's really amazing. We are really thankful to you. And प्रियंका जी, हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल जो आप अपना पेज चला रही हैं, गुड लाइफस्टाइल, उसमें आप सस्टेनेबिलिटी जो है जिसको आप बढ़ा रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस तरह से लाइक माइंडेड लोग जुड़ेंगे तो कोई भी इस धरती को हरा भरा करने में जो है किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी. So, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने एक मोटिव शुरू किया था, एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट, वो आज हमें आपके मुंह से भी सुनने को मिला है. आज हम यहाँ पर कई बार त्रिवेणी की बात कर चुके हैं. थैंक यू सो मच पारुल जी, जो आपने त्रिवेणी प्लांट कराई हैं. हम आपको त्रिवेणी के बारे में बताएं अगर, तो ये कॉम्बिनेशन है 3 पौधों का, नीम, पीपल और बरगद. और जिस तरह से आज की डेट में हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर इतना पैसा लगा रहे हैं, अपनी सारी इनकम, और उसके बावजूद हम अपने अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम इतनी तकलीफ में हैं. तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आज हमारी जो तकलीफ है उससे हम कुछ सीखें और हमारे अपनी और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़कर जाएं. बैंक बैलेंस की बजाय हम लोग को एक अच्छा उनको एनवायरनमेंट देकर जाएं जहाँ पर वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं. त्रिवेणी जो है वही इसी मोटिव की तरफ एक शुरुआत है. त्रिवेणी जो है वो कॉम्बिनेशन है 3 पौधों का, नीम, पीपल और बरगद. जो ये पौधे हैं ये 100% पीपल, नीम और बरगद 80% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं. अभी मुझे कल ही रात को किसी से बात हो रही थी, तो ओरोविल पौंडीचेरी के पास एक जगह है जहाँ पर उन्होंने बरगद के एक पेड़ को प्रिजर्व किया है. एंड उस पेड़ के सराउंडिंग में, उस पेड़ के नीचे 1000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. अब आप ये सोचिए कि अगर एक पेड़ 1000 लोगों को शेल्टर दे सकता है, तो अगर हम ये त्रिवेणी जो नीम, पीपल और बरगद तीनों पौधे एक साथ लगाएंगे तो वो कितना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है. सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, आपको कहीं पर भी छोटी बड़ी कहीं पर भी कोई जगह मिल रही है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी लगाए, जो तीनों पौधे लगाए जा सकते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू हमारे साथ जुड़िए, हमें बताइए. हम सब मिलकर अगर इनिशिएटिव लेंगे तो हम आने वाली जनरेशन के लिए इस धरती को हरा भरा रख सकते हैं. और दूसरी चीज पारुल जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि जैसे कंपोस्टिंग के टाइम पे कुछ दिक्कतें आती हैं कि कुछ स्मेल होती है, कुछ लिजर्ड्स आती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. एग्जैक्टली. एंड ये तो अच्छा है. हमें पशु पक्षी, हमारे जब हम गार्डन बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ पक्षी आते हैं, तितलियां आती हैं, कुछ बीज आती हैं. सो दे आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम और वो पार्ट ऑफ इट, वो नुकसान नहीं करते हैं. ये हमारी गलतफहमी है कि ये हमारे पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं. ये नहीं करते हैं, बल्कि ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है. ये हेल्पफुल है जो कि हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने में, मतलब बेसिकली इट्स अ फूड चेन. अगर हम फूड चेन की बात करें साइंस के अंदर, तो हर इंसेक्ट, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है. और अगर हम अपने थोड़े से एफर्ट्स के साथ इस इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प कर सकते हैं, तो इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप. You know, the small steps, because we have long way to go for a sustainable life, and only small steps can make this effort successful. So agar aaj hum apne takeaways ki baat kare, so you know, the very important word, the happy space, we all should create. Thank you Priyanka ji for this new word, that happy space. So everybody should go for the happy space and the black gold, you know, the waste. So we are so worried about the dumping grounds, the increase in temperature and this thing, but if we convert this waste into the black gold, you know, the amazing world. And compost kitchen, yes, vegetation is important, oxygen is important, and the other is one is RO water, you know, the water conservation, that how we are using the RO water, and also we can use the AC water. One thing more I would like to share, when I was, I used to keep a small bucket under the tap of my kitchen. So whenever we wash some vegetables and so many cereals, so that water get collected in the bucket and we used to water the plants with that water.
So I think this water contains a lot of nutrients, and if we use this water for watering the plants, that will help us a lot. So if we can, I think these small steps, it will save the water as well as give nutrition to our plants. So these small steps can make a big change that can create a, you know, boon boon se sagar. So ये yes, so मुझे लगता है कि I think अब हमारे स्पीकर्स अगर कुछ सम अप करना चाहें, so please go ahead. I would like to. Yeah, Priyanka. Space small है या big, that doesn't matter. What matters is your intention, and you can make it a. We should not make, you know, a little corner happy space. We can make this entire environment a happy space for us if we put little efforts. I would like to show one thing. So I think everybody can see this. Yes. So, you know, our project is for the women employment also. And for a recent project, our women team has designed these small planters. You know, the gift a plant and gift a life. These plants are living. If we are gifting the plants, that means we are giving the life. We are gifting a life, and we are giving the responsibility to nurture a life. So we all should adopt this practice of gifting the plant on every occasion. So, you know, yeah. Yes, please. Yes, Parul. मेरी जो हाउस हेल्प है उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, दीदी मुझे तुलसी के बीज है आपके पास, उससे मुझे पेड़ बना के देना तुलसी का. आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज शी, यू नो, वो मुझे देखती है मैं कैसे प्लांट्स की केयर करती हूँ एंड ऑल. व्हेन शी आस्क्ड मी फॉर दैट प्लांट आई वाज सो हैप्पी. एंड अभी मैंने उसको रिसेंटली एक एलोवेरा प्लांट भी गिफ्ट किया था बिकॉज आई हैव सो मेनी प्लांट्स, आई डोंट हैव स्पेस. मेरे को जब लगता है कि मेरे पास कुछ प्लांट ऐसा है जो मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ, सो आई गिफ्ट देम. यस प्रियंका जी, आज हमने ये सेशंस शुरू किए हैं स्लम एरियाज में बच्चों के साथ, जहाँ पर बच्चों ने प्लास्टिक बॉटल्स को सेल्फ वाटरिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया है. क्ले पॉट्स में भी प्लांट्स लगाए हैं. हमने 2-3 जगह पे ये सेशंस लिए हैं. It's a motive that as you told that you have made similarly at my house help also. They are also asking for the plants and they are growing, they are using their rooftops, their rooms, they are making their area green. And definitely अगर वो उसको green area में convert कर रहे हैं तो वहाँ पे साफ सफाई भी कर रहे हैं. So this way उनका एक lifestyle जो है वो change आ रहा है. तो we should keep motivating everybody. Definitely. Rightly said, Ekta. I would like to repeat again, you know, these small steps, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है. I think हर एक इंसान अगर छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लें towards the plants, then I think we can definitely make a vast difference to the whole green environment. And I would also like to mention Mr. Kulveer Brar has given a tip, you know, where we can have invitation cards sent with along with tree saplings. That will also be, you know, a lovely way to gift saplings along with invitation cards, and you know, अपनी धरोहर को और आगे बढ़ा सकते हैं और बांट सकते हैं. So, Parul and Priyanka, we were so glad that you came with us and shared all your wonderful insights and shared your love for plants. And आपके gardens are so nice. And like Ekta said, the happy space and the black gold. I think these are the two takeaways from our session. We would like to invite any guest, anyone in the audience to come and join with us. Whoever is a passionate plant lover, please हमारे साथ जुड़िए. You can come and share your insights. आपकी जो भी आपकी आकांक्षा है towards, you know, a greener world, you can share that with us. So everyone is most welcome. You can contact Parijay Genus. And we would like to end this session thanking each and every audience for being with us and listening to us and being a part of it. Most welcome. Every first and third Saturdays, we have our webinar. So please do join us. Thank you so much. Thank you, Ekta. Thank you, Ekta, for having me here. So this is our contact. So you could visit our website along with our social media handles, and please do contact on the telephone number that is displayed on the screen. We'd like to invite anyone and everyone who would like to be a part of our journey. Thank you, Mr. Kulveer.
You have done an immensely good job. So we'd like to have you along with us as well. Mr. Kulveer, please share your contact details or contact us at the number so that we can invite you on our show. Yes. Please do share your details in the chat box.